So dear students, let us discuss some previous year question based on CSIR NET exam. And basically the topic that I have taken is solid state physics, or you can say condensed matter physics. Okay. So the first question: a narrow beam of X-ray with wavelength 1.5 angstrom is reflected from an ionic crystal with an FCC lattice structure with a density of 3.32 gram per centimeter cube. The molecular weight is 108 AMU. And the first question is the lattice constant is, what will be the lattice constant? So, and the second question is the sine of the angle corresponding to 1 plane reflection is. इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है दैट क्वेश्चन में साइन ऑफ द एंगल फाइंड आउट करना है. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द ब्रैग्स लॉ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन पहले हमको लेटिस कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट द साइन ऑफ द एंगल corresponding to 1 plane. Okay, so the given parameters are a narrow beam of X-ray with wavelength 1.5 angstrom, है ना, reflected from an ionic crystal. So if this is an ionic crystal, if you say, so this is the incident X-ray, you can say. Okay, so this X-ray and इसका जो wavelength है that is lambda is given as 1.5 angstrom, you can say, is reflected from an ionic crystal with FCC lattice structure. So FCC lattice structure में क्या होते हैं, उसका जो नंबर ऑफ इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स या नंबर ऑफ इफेक्टिव जो एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, दैट इज n इफेक्टिव, यू कैन से, दैट इज सिंपल, यू कैन राइट n, एंड दैट इज बेसिकली फॉर FCC lattice 4. FCC lattice में नंबर ऑफ इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल, दैट इज 4, है ना, फॉर FCC lattice. एंड डेंसिटी जो है दैट इज रो, इट इज गिवन दैट 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज आल्सो गिवन हियर 108 AMU, है ना. सो यू कैन राइट इट इज कैपिटल M, सो दैट इज 108 AMU. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लैटिस कांस्टेंट, लैटिस पैरामीटर जो है. सो if the lattice parameter, if the lattice constant is A, है ना, in FCC lattice you can write unit cell something like this, and इस unit cell का जो lattice parameter है that is A. So इसका volume जो होगा, you know, that will be A cube. This is cubic structure basically, so it will be V is equal to A cube. Now what is the formula for density of a lattice of a crystal? So density is nothing but is equal to mass upon volume, but mass will be n, which is the effective number of atoms, into capital M, which is molecular weight, upon Avogadro number Na into V, and V के जगह हम लिख सकते हैं A cube. So this is, you can remember in this way कि mass upon volume. तो mass is the number of lattice point into mass, atomic mass, and volume is Avogadro number into A cube. Okay. Now यहाँ से हम A को ऐसे लिख सकते हैं, it will be just n into m upon Na into rho to the power 1/3. Okay. So ये क्या होगा, देखो n का जो वैल्यू है that is 4, m का जो वैल्यू है that is 108, हमने दे दिया ऑलरेडी 108 AMU में दिया है. So we can substitute Na and rho in SI unit, है ना. So SI unit में Na कितना होगा, देखो Na का जो वैल्यू है, और यहाँ जो एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ पर किलोमोल लिखना है, क्योंकि 108 जो है ये AMU दिया है. ओके, सो Na का जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 6.023 इंटू 10 to the power 26, है ना. और ये जो है दैट इज एटम्स पर, ये जो वैल्यू है दैट इज एटम्स पर किलोमोल. सो m को अगर हम AMU में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो Na को इस यूनिट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ओके, सो Na विल बी
023 इंटू 10⁻26। तो रो कितना होगा, देखो रो यहाँ 3.32 ग्राम पर सेमी क्यूब में दिया है, तो इसको अगर हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सो रो को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 3320 है ना, सो टू द पावर 1/3। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 इंटू, इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 6 इंटू 10⁻³ है ना, टू द पावर 1/3, इट विल बी जस्ट टू द पावर 1/3। सो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, सो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट जस्ट a इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और 10⁻⁻10 मीटर जो है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, सो यू विल गेट दिस 6 एंगस्ट्रॉम। सो जो लेटिस कांस्टेंट जो है वो आ गया 6 एंगस्ट्रॉम। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मिल गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, द साइन ऑफ द एंगल, है ना। सो वी हैव फ्रॉम ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन, यू नो, फ्रॉम ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन हम हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 2d sin थीटा, है ना, 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। नाउ यहाँ से हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होगा, दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2d। अब देखो d क्या है, d बेसिकली जो है ये जो लैटिस है ना, ये जो क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या होगा, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होगा। ये जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन है इसके जो डिस्टेंस है दैट इज d। अब d को हम कैसे इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस h के l। सो यू नो फॉर क्यूबिक क्रिस्टल d जो होता है दैट विल बी a, दैट इज लैटिस कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एंड हियर फॉर one प्लेन h के l का जो वैल्यू है दैट इज आल्सो 1, सो इट विल बी a अपॉन √3, है ना। तो d को हम a अपॉन √3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो इट विल बी जस्ट लैम्डा अपॉन 2 इंटू a अपॉन √3, तो √3 ऊपर आ जाएगा। अब देखो a का जो वैल्यू है दैट इज 6 एंगस्ट्रॉम दैट वी हैव फाइंड आउट, एंड लैम्डा का जो वैल्यू है दैट इज गिवन 1.5, सो लैम्डा को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा √3 अपॉन 8, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, 1.5 का मतलब 3/2, तो ये आ जाएगा, देखो ऐसे हम कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन। 1.5 का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 है ना, इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 6, है ना, तो 3 2 हो जाएगा, सो इट विल जस्ट √3 अपॉन 8। सो साइन थीटा जो होगा दैट विल बी √3 अपॉन 8। सो यहाँ जो आंसर है देखिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, so this is how we can find out this kinds of problem. Now let's move to the next question. This question is also asked in NET June 2011, but this question is from superconductor. Okay, superconductor is a very important chapter for your CSIR NET exam. So देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द फ्लक्स क्वांटम, जिसको हम फ्लक्स वेट भी कह सकते हैं, है ना, ये फ्लक्स क्वांटम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। ओके, a type 2 semiconductor, देखिए semiconductor there are two types of semiconductor, type 1 and type 2. So type 2 semiconductor is placed in a small magnetic field which is then slowly increased till the field starts penetrating the superconductor. The strength of the field at this point is this. Okay, क्वेश्चन ए में बोल रहे हैं कि the penetrating depth of this superconductor, और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं the applied field is further increased, बाद में और भी इंक्रीज किया गया है, till superconductivity is completely destroyed. Okay, the strength of the field is now this, the correlation length of the superconductivity. So second question में हमको correlation length फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमको penetration depth फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो टाइप 2 सुपरकंडक्टर होते हैं उसमें जो फील्ड होता है, क्रिटिकल फील्ड होता है, देयर आर टू क्रिटिकल फील्ड फॉर टाइप 2
सेमीकंडक्टर। सो अगर हम इसको ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं कि इधर अगर m है, ओके, और इधर जो h मतलब अप्लाइड फील्ड जो है वो h। सो इसका जो ग्राफ होता है, पहले तो m और h के बीच में एक लिनियर रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, फिर उसके बाद एक फील्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं HC1, दैट इज क्रिटिकल फील्ड 1, है ना। उसके बाद ये ऐसे डिक्रीज करते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट विल बी क्रिटिकल फील्ड 2। ओके, सो देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्रिटिकल फील्ड दिया है, देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट इज दिस, है ना। तो यहाँ जो क्रिटिकल फील्ड का HC1 का जो वैल्यू दिया है, देखिए HC1 जो है दैट इज इक्वल टू 2/पाई इंटू 10⁵ गॉस, है ना, दैट इज HC1 यू कैन सी, है ना। और HC2 का जो वैल्यू दिया है यहाँ दिया है, देखिए क्वेश्चन बी में HC2 जो है दैट इज इक्वल टू 8/पाई इंटू 10⁵ गॉस, है ना। तो देखिए ये दो फील्ड का जो वैल्यू क्रिटिकल फील्ड का वैल्यू दिया है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पेनिट्रेशन डेप्थ निकालना है। तो देखिए पेनिट्रेशन डेप्थ एंड ये जो क्वांटम फ्लक्स क्वांटम या फिर फ्लक्सॉइड है, पेनिट्रेशन डेप्थ फ्लक्सॉइड और क्रिटिकल फील्ड के बीच में एक रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। दैट इज HC1 इज इक्वल टू होता है फाई नॉट अपॉन पाई लैम्डा स्क्वायर, जहाँ फाई नॉट जो है दैट इज क्वांटम फ्लक्स या फिर फ्लक्स क्वांटम या फिर फ्लक्सॉइड आप बोल सकते हैं, लैम्डा जो है वो पेनिट्रेशन डेप्थ है और HC1 फर्स्ट क्रिटिकल फील्ड है। तो यहाँ से हम लैम्डा को निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन पाई इंटू HC1। तो फाई नॉट का वैल्यू कितना है, फाई नॉट का वैल्यू दिया है दैट इज ये 2 इंटू 10⁻⁻7, है ना। सो फाई नॉट जो है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 अपन पाई के वैल्यू आप लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है, तो इट विल बी पाई इंटू 2/पाई इंटू 10⁻⁻5। सो इसमें क्या है देखिए पाई पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट 10⁻2, है ना। अच्छा ये +5 में है ना, सॉरी, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, है ना। सो 10⁻12 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि सब सीजीएस यूनिट में दिया है। ओके, तो अब देखिए लैम्डा का वैल्यू जो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 10⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 10⁻6 को अगर हम 10⁻8 लिखते हैं तो कैसे हम 10⁻8 कर सकते हैं, तो 100 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, और 10⁻8 जो है दैट इज एंगस्ट्रॉम, सो 100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सो इसका जो पेनिट्रेशन डेप्थ है दैट इज 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब फील्ड को अगर फर्दर हम ऐसे इंक्रीज करते हैं इस डायरेक्शन में, तो देखिए ये सेकंड क्रिटिकल फील्ड तक पहुंच जाएगा, और सेकंड क्रिटिकल फील्ड और कोरिलेशन लेंथ के बीच में भी एक रिलेशन है, तो वो क्या है देखिए दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर बी, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो HC2 होता है सेकंड क्रिटिकल फील्ड जो होता है दैट विल बी इक्वल टू फाई नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जो है इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन लेंथ, है ना। तो एप्सिलॉन क्या होगा देखिए दैट विल बी अगेन फाई नॉट अपॉन पाई HC2। तो फाई नॉट का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, सो 2 इंटू 10⁻7 और पाई, और सेकंड क्रिटिकल फील्ड का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा ही होगा क्योंकि इधर है, ग्राफ से अभी आप देख सकते हो। सो HC2 का जो वैल्यू है दैट इज 8/पाई इंटू 10⁵। तब क्या होगा देखो ये पाई पाई तो कट जाएगा, सो एक 1/4 होगा इंटू जो होगा 10⁻12, है ना। इसका मतलब अगर ये स्क्वायर में है ना, तो अगर एप्सिलॉन है तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो जाएगा, सो इन दैट केस ये हाफ इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर, इसका मतलब पहले जितना था उससे आधा होगा, सो पहले 100 एंगस्ट्रॉम था, सो यह हो जाएगा 50 एंगस्ट्रॉम। ओके, 50 एंगस्ट्रॉम, तो देखिए ये 50 एंगस्ट्रॉम जो है आंसर में है ही नहीं। ओके, सो ये थोड़ा सा आंसर में गलती है, इसको ये शायद 50 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। ओके, सो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए होना चाहिए, हालांकि यहाँ थोड़ा सा गलती तो है क्वेश्चन में। ओके, जो ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसे आप कर सकते हो, आप
प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए, लेकिन हर टाइम तो ऐसा नहीं होगा। आंसर अगले टाइम अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आंसर सही रहेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 9 दिसंबर 2011। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, दैट क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ओके, so the potential of a diatomic molecule as a function of distance r between the atoms is given by this। तो v of r को यहाँ दे दिया, the value of the potential at equilibrium separation। so equilibrium separation में इसका जो पोटेंशियल है वो निकालना है। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालना पड़ेगा। एंड यू नो कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल शुड बी जीरो। सो एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, dv अपॉन dr जो है दैट इज जीरो होता है। सो अगर हम यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा माइनस ए, और 1 अपॉन आर टू द पावर माइनस 6 का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी माइनस 6 अपॉन आर टू द पावर 7, है ना। प्लस देखिए b और आर टू द पावर 12 का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी माइनस 12 अपॉन आर टू द पावर 13, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम r का वैल्यू निकल सकते हैं। देखिए सो ये हो जाएगा 6a अपॉन आर टू द पावर 7, आर टू द पावर 7 होगा, आर टू द पावर 7 माइनस 12b अपॉन आर टू द पावर 13, है ना, इक्वल टू जीरो। सो देखिए ये हो जाएगा ऐसे हम लिख सकते हैं कि 6a अपॉन आर टू द पावर 7 इक्वल टू 12b अपॉन आर टू द पावर 13। अब देखिए ये जो हो जाएगा, है ना, इधर a इक्वल टू हो जाएगा इधर 2b, है ना, और ये जो आर टू द पावर 7 है ये आर टू द पावर 6 हो जाएगा। सो आर टू द पावर 6 जो होगा दैट विल बी 2b अपॉन a। सो एट इक्विलिब्रियम आर टू द पावर 6 का जो वैल्यू है दिस इज दिस। सो आर टू द पावर 12 का वैल्यू कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा, सो दैट विल बी 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए आर टू द पावर 6 और आर टू द पावर 12 का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो v ऑफ r एट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो एक्चुअल में v ऑफ r जो है दैट इज माइनस a अपॉन आर टू द पावर 6 माइनस a अपॉन आर टू द पावर 6 प्लस b अपॉन आर टू द पावर 12, है ना। तो इसका पहले आर टू द पावर 6 का वैल्यू लिख देते हैं। सो 1 बाई आर टू द पावर 6 उल्टा हो जाएगा, सो माइनस a इंटू a बाई 2b हो जाएगा, प्लस देखिए b इंटू 1 बाई आर टू द पावर 12 मतलब a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर होगा। सो देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b और यहाँ हो जाएगा एक b कट जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b। सो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b। ओके, सो माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b विल बी द आंसर। सो D will be the correct answer. Option D will be the correct answer. Okay. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन नेट दिसंबर 2011 एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल के क्वेश्चन है। ओके, सो इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, नंबर डेंसिटी जो है वो 8 टाइम्स अगर इंक्रीज हो गया तो फर्मी टेम्परेचर क्या होगा। देखिए फर्मी टेम्परेचर TF जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू EF, मतलब फर्मी एनर्जी के इक्वल हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो अगर हम फर्मी एनर्जी निकाल लेते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि फर्मी टेम्परेचर जो है वो कैसे डिपेंड करते हैं। तो ये फर्मी एनर्जी जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी से, और फर्मी एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इन 3 डायमेंशन ये आपको याद रखना है, दैट विल बी इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m इंटू 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 2 अपॉन 3। यह है फर्मी एनर्जी। इसका मतलब देखिए फर्मी एनर्जी जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। सो देखो अगर नंबर डेंसिटी अगर 8 टाइम्स हो जाएगा तो EF जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 8 टू द पावर 2/3। इसका मतलब 8 टू द पावर 2/3 का मतलब क्या, देखिए 2 क्यूब 8 का मतलब टू द पावर 2 अपॉन 3, सो इट विल बी 2 स्क्वायर, सो दैट विल बी 4। इसका मतलब अगर नंबर डेंसिटी को हम 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो फर्मी फंक्शन जो है दैट विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स, है ना। और ये
टेम्परेचर जो है इससे प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर 4, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, so this is how you can solve this kinds of problem. Now next question. Okay, so ये क्वेश्चन में हम एक ट्रिक यूज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला जो है ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला होगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द एक्साइटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड आर बोसोनिक इन नेचर, ओके, with their frequency omega and wave number k are related by omega proportional to k square। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू k square दिया है। देखिए in the large wavelength limit, if the chemical potential is zero, the behavior of the specific heat of the system at a low temperature is proportional to। तो इसमें देखिए स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंसी है वो है CV इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर, ऐसे हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन अपॉन S। ये D क्या है? डायमेंशन। ये अगर 3 डायमेंशन है तो 3 होगा, 2 डायमेंशन है तो 2 होगा। ओके, अब देखिए ये तो 3 डायमेंशन, सीधा सीधा यहाँ बोल दिया है 3 डायमेंशन, सो D विल बी 3। ओके, और S कितना होगा? देखिए S जो है K का पावर होगा, मतलब ओमेगा को हम ऐसे K टू द पावर S लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया क्या है? ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, सो एस जो है दैट इज 2, सो सी भी जो होगा वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 3/2। सो ये फॉर्मूला याद करके हम इसको ऐसे प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस फॉर दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम ये ट्रिक काम आएगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन जो है वो लेंदी होगा, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू।